ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ। ਵਕਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਖਾਮਦ ਭੈੜਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਭੈੜੇ ਨੇ ਤੇ ਐ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਇਹ ਤਾਲੀ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜੀ, ਤਾਲੀਆਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਪਾਸੇ ਵੱਜਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵਾਂ, ਨੂੰਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਟਾਈਮਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਾਂ ਔਰ ਟੋਲਰੈਂਸ, ਸਬਰ ਔਰ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਦਾ ਦਾਮਨ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਮਾਨੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਰਦ ਵੀ ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਜੇ ਮਰਦ 10 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਔਰਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਕੰਮ ਸਬੱਬ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ। ਅਵਲ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਬਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਫਲਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਤੇ 10 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਔਰਤ 10 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਗੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਲਨ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਸਤੀ ਵਕਰਾਂ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਔਰ ਫਰੈਂਡ ਔਰ ਦੋਸਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸੀ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਦੀ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਦੀ ਅਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਰਦ ਨੂੰ ਅਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਆ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਨਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜ਼ੱਦ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਚਲੋ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਮਰਦ ਦੀ ਅਨਾ ਜਿੱਥੇ ਅੜ ਜਾਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿੱਛੇ ਅੜ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਮਿਲੇਗਾ। 1 2 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦੋਂ ਉਹ ਹੀ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਬਾਤਾਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੱਲੂ ਨਾ ਬਣ ਲੈਣ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਨੂੰਹਾਂ ਵੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰਦ ਦੀ ਅਨਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮਰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਭੜਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਭੜਕਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਉਸ ਵਕਤ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਭੜਕਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜੇ ਬੈਠੋਗੀਆਂ ਨਾ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਮਲੇ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਕਦੀ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੀਚੀ ਪਾ ਲਵੋਗੇ ਔਰ ਦੰਦਾਂ ਦਬਾ ਲਵੋਗੇ तो तुसी देखना कि कभी भी बात नहीं बढ़ेगी कि वो घर का दरवाज़ा आप फलांग के बाहर निकले, कभी भी बाहर ना जाएं। वो आपकी घर गृहस्थी है, आपकी हुकूमत है, वहाँ आपका खामद है। अगर ससुराल भी साथ है तो उनके भी दिल जीते। ये एक बंदा आता है और सारे ख़ानदान का दिल जीतने की कोशिश करता है। ये चीज़ जो है यही हमें वालिदैन ने सिखाई है। तो अपने अखलाक से, अपनी मोहब्बत से अपने ससुराल का दिल भी जीतो। काम करने उसमें कोई आड़ नहीं होती। अगर ज़्यादा काम भी करना पड़ जाता है कि हांडी बनानी है, मैंने रोज़ रोटियां बनानी है, सफाइयाँ करनी है, बर्तन धोने हैं, ये करना है, वो करना है, आप करो, लेकिन एक अदब के दायरे में। अगर समझाना भी है किसी को तो अच्छे तरीके से समझाओ, लड़ाई का माहौल ना बने। अगर अपने हस्बैंड से भी इन मामलों में बात करते हो
करो, लेकिन साथ उनको समझाओ कि मोहब्बत से, प्यार से आपने अपने वालदा से या अपनी बहनों से बात करनी है। इस तरह घर जो है जुड़ते हैं। घर को जुड़ने वाला बनाओ, घर को जोड़ने वाला बनाओ, तोड़ने वाला ना बनाओ। खुद आपका भी टूट जाएगा घर अगर आप किसी का घर तोड़ते हैं। तो मेरी बच्चियों, ये बातें जो है सीख लो। हमने जो हम नज़र आते हैं ना दुनिया को, हमने भी ये कुर्बानियाँ सारी दी हैं। इसको आप सेक्रीफाइस को, इसको आप सब्र को, दरगुजर को, टॉलरेंस को, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन ये चीज़ें आप अपने आप में शामिल कर लें। देखना ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी और कामयाब हो जाएगी। अस्सलामुअलैकुम मेरे सोने सज्जन मित्र, चिड़ियाँ ते चिड़े ते भरा ते भैना ते मेरे वड्डे ते मेरे छोटे सब नूं आदाब अर्ज़े, सब नूं सत श्री अकाल, नमस्ते और अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो? बहुत अच्छा मौसम है आज, दिल खुश हुआ इस मौसम से। हालांकि टेम्परेचर जो है वो मेरा ख्याल है 7-8 है, टेम्परेचर तो 7-8 है, मगर धूप चूँकि फुल है और इसलिए बहुत ही अच्छा मौसम हुआ है। तो मैंने कहा कि ज़रा स्टार्ट करें एक नया दिन, नया व्लॉग लेके। शाहीना असद अपनी बातों समेत आपके पास है। और सुनाएं, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या चल रहा था, क्या हो रहा था? बातचीत तो चलती रहती है ज़िंदगी में, बातें तो चलती हैं। आज जो है ना, मैंने कपड़े, मुझे ठंड पड़ी है, सुबह के टाइम लग रही थी, मैं क्या बहुत ठंड लग रही है, चलो ज़रा मोटे मोटे कपड़े पहनूँ। फिर मैंने ये कपड़े निकाले, सॉक्स पहनी और ज़रा आके सन रूम में बैठ गई। मैंने कहा सन रूम में बैठूँ और बातचीत करूँ आपसे। बातचीत करना शुरू हो गई, मज़े मज़े की बातें, मज़े मज़े की मुलाकातें। तो ये मुलाकात ही होती है देखा जाए तो। हम क्योंकि जब बात करते हैं अपने सज्जन मित्रों से तो वो मुलाकात ही हो रही होती है। और लोग कहते हैं कि एक खत जो है, आधा खत आप डालें तो वो जो है मुलाकात होती है। लेकिन ये तो हम दू बदू आपको नज़र भी आ रहे हैं और मिल भी रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये मुलाकात मुकम्मल हो रही है। बस आप हमें नज़र नहीं आ रहे। आप तो बिल्कुल वही हिसाब है कि पूरी दुनिया से लोग हमें देख रहे हैं, लेकिन हम आपको नहीं देख रहे। जब आपके कमेंट्स आते हैं तो फिर आपकी छोटी छोटी बाज़ लोगों की, बहन भाइयों की तस्वीरें लगी होती हैं, तो उस वक्त आपको हम देख सकते हैं, छोटी छोटी वो भी बहुत। तो बहरहाल ये मुलाकात ही होती है, जो भी हम कुछ बातें करते हैं। तो वो क्या गाना है, एक ये मुलाकात एक बहाना है। ये जो गाने चलते हैं ना, ये भी ज़िंदगी के हिस्से होते हैं। हमारे जो अंदर एहसास, जज्बात, बातें, इमोशंस, ये गाने भी तो उसी का एक रूप होते हैं और उसी का रूप लेके तो जो शायर हैं वो गाना लिख देते हैं। तो जनाब, गाने भी चलते रहेंगे, ज़िंदगी रहनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी ही सब चीज़ों का बहुत खूबसूरत सिंबल है। तो मैं ये कहूँगी कि अच्छी चीज़ें करें, दूसरों के लिए बेहतरीन चीज़ें करें। अगर आप अच्छा जज्बा रखते हैं, देखें, मैं ये देखती हूँ, जब मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि अल्लाह मियाँ कहते हैं ना कि मैं हर वक्त देख रहा हूँ, हर लम्हा तुम लोगों को सुन रहा हूँ, हर चीज़ का मुझे इल्म है। तो जब अल्लाह को हर चीज़ का इल्म है तो फिर हम गलत चीज़ें कैसे कर लेते हैं? इसलिए कि हम बेनियाज भी हैं। इंसान जो है बेनियाज भी है, बेनियाजी उसमें आ जाती है। वो भूल जाता है कि हमें कोई देख रहा है या हम ये गलत बातें कर रहे हैं। जब हम दूसरे को मैप करते हैं अपने जहन से ना, तो हम वो चीज़ें करने लग जाते हैं जो हमारा अंदर से हमारा इनर कह रहा होता है।
लेकिन अगर हम अपने ज़हन में किसी को रखें और ज़हन में रखते हुए हम अमल करते हैं तो हमें याद रहता है कि उस हस्ती ने हमें मना किया था। तो रब सोना जो है ना, वो ज़हन में, रूह में, दिल में रखने वाली हस्ती है, क्योंकि रूह तो उसी की है। हम याद रखें हर वक्त के अल्लाह मियाँ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमारे सारे काम बेहतर हो सकते हैं। बस मुनाफकत ना करें, कम ना तोलें। उफ, आज मुझे उधर पाकिस्तान से मैं मैना जान से बात कर रही थी, तो मैना जान मुझे बता रही कि पता नहीं क्या हुआ है कि पाकिस्तान में 3-3 किलो, 4-4 किलो की मुर्गियाँ बिक रही हैं शॉप्स पे। मैंने कहा क्या मतलब? वो कह रही है कि लाहौर में यही हो रहा है, पूरे लाहौर में। मैंने कहा कि क्या? कहती है कि वो उसकी वजह ये है कि जो उनको खुराक देते हैं, वो खुराक इतनी वो उनको खिला रहे हैं कि वो इतने इतने मोटे मोटे पल के जो है ना, इतने इतने बड़े हो रहे हैं। मैंने कहा इतने इतने? उसने कहा इतने इतने वो मोटी हो जाती हैं, उनके थाई मोटे हो जाते हैं, उनका पेट मोटा हो जाता है, सारा गोश्त जो है ना वो मोटा हो जाता है। तो उस वजह से उनका वेट अंदर से वो कुछ भी नहीं है। जाहिर है, आपको पता है कि हाइजेनिकली और अनहेल्दी ये मुर्ग जो आजकल चल रहा है ना, ये अनहेल्दी है। और उसने कहा कि जब इतने मोटे मोटे हम देखते हैं तो हम तो खरीद नहीं रहे। तो अब आप अंदाज़ा लगाएंगे हमारी कौम किसी चीज़ में भी मतलब बेईमानी करना ख़त्म नहीं कर रही। फूड वो चीज़ है जो आपके जिस्म में जाता है और आपके जिस्म का हिस्सा बनता है। अगर वो सही नहीं होता तो आपको बीमारियाँ लगती हैं। इसी तरह गोश्त में भी होता है कि पानी के टीके उन्हें लगा रहे होते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि गोश्त जब वो लेके आते हैं पूरा पूरा मतलब रान है, ये है, तो उधर टीके लग रहे होते हैं पानी से भरे हुए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लटके हुए हैं और टीके लगा रहे हैं पानी के। इससे कितना फ़र्क पड़ जाता है। मगर आप खुदा की नज़र में और अपनी आक़िबत में पता नहीं कितनी सज़ा पाएंगे। तो इसलिए ये जो खुराक में भी हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा गलत चीज़ें, बेईमानियाँ, मिलावटें होने लग गई हैं, तौबा तौबा तौबा। डर लगता है कि पता नहीं कौम का क्या होगा। क्यों? क्योंकि कोई बाज ही नहीं आ रहा, बढ़ रही हैं चीज़ें, चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। तो आप दुआ करें, दुआ करें। वो जो देख रहा है, वो जिसको सब इल्म है हम क्या कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं वो सुन रहा है, तो आप मुझे बताएं कि क्या हम उससे मांगें। वो कहेगा मैंने तो तुम्हें बाइख्तियार पैदा किया हुआ है और तुम इस चीज़ के ख़िलाफ़ सारे क्यों नहीं उठ खड़े होते। उफ, करप्शन हमारे मुल्क में इतनी हो गई है, हर चीज़ करप्शन ही है, ये करप्ट ही है। ये जो चीज़ें भी हो रही हैं ये करप्शन के ज़ुमरे में आती हैं कि देखें लोग जो कारोबारी लोग हैं वो करप्शन कर रहे हैं, वो अपने टैक्स बचा रहे हैं, टैक्स नहीं देते। दुकानदार जो है वो 1 नंबर जब मंडी जाता है तो वो कहते हैं ये 1 नंबर चीज़ है, ये 2 नंबर चीज़ है, ये 3 नंबर चीज़ है। तो वो 3 नंबर चीज़ लेंगे सबसे घटिया और आके बेचेंगे 1 नंबर के प्राइस पे। तो आप बताइए कि मुआशरा हमारा तो तबाह हो गया। तो किस तरह हम अल्लाह मियाँ से दुआ कर सकते हैं? मैं नहीं समझती हम अल्लाह पाक से दुआ करके उनसे कह सकती हैं। मुझे नहीं समझ आती। लोग आगे से कहते हैं कि अल्लाह बड़ा मेहरबान, बड़ा रहीम, लेकिन मैं कहती हूँ वो मेहरबान और रहीम आप उन लोगों के लिए है जिनसे कभी कभार गलतियाँ हो जाती हैं, कभी कभार ख़ताएँ हो जाती हैं, जो कभी कभार करप्शन कर लेते हैं, उनके लिए तो वो माफ़ी कर देता है, मेहरबान हो जाता है उनके लिए माफ़ी की सूरत में रहीम भी हो जाता है। लेकिन जहाँ मुसलसल ये चीज़ होती रहती है वहाँ आप कैसे अल्लाह से भी बात कर सकते हैं? मैं ये नहीं समझती। आप व्यूवर्स अगर कुछ इस बारे में बात करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान का एक अपना ही नुक्ता नज़र है। लेकिन अल्लाह ने सबको ज़हन भी दिए हुए हैं, अगर हम ज़हन से काम लें तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत ज़िल्लतों की अथाह गहराइयों में गिर रहे हैं और गिर चुके हैं और बाकी भी गिर रहे हैं। हम बाज नहीं आ रहे ना, तो डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। अल्लाह ताला माफ़ करें। ठीक है व्यूअर्स, आप भी कहेंगे कि हमारी शाइना सब किस काम में लग जाती है। ये चीज़ ऐसी है कि मेरा दिमाग जो है ना वो उधर को चल पड़ता है, मुझे दुख बहुत होता है।
मुझे बड़ा दर्द पहुंचता है इन चीज़ों से कि हम बाज क्यों नहीं आते। हमें जब अल्लाह मियाँ कह रहे हैं हर लम्हा तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारी हर चीज़ सुन रहा हूँ, हर चीज़ का मुझे इल्म है, तो हम फिर भी पास नहीं आते कि एक हस्ती है जो हर वक्त हमें देख रही है। हमारी हर बात जो हम करके भी करते हैं, हम कानों में भी करते हैं, वो हमारी हर बात सुन रहा है। तो हम फिर भी क्यों नहीं इन चीज़ों से बच पाते हैं, समझ नहीं आ रही। और फिर रोज़ जलजला आ रहा है, और रोज़ मैं इस्लामाबाद में ऐसा ऐसा ओला पड़ा है जो कभी मैंने ज़िंदगी में देखा ही नहीं। ऐसे ऐसे टुकड़े 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 जुड़े हुए। उफ मेरे अल्लाह, हमें माफ़ करें, हमें माफ़ करें, हमारी मदद फरमाएं, हदायत पे चलने के लिए हमारी मदद फरमाएं। यही कह सकते हैं जनाब, और क्या कह सकते हैं व्यूवर्स। तो प्लीज़ 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 आप अपना नुक्ता नज़र ज़रूर बताएं, ठीक है। बातचीत होती रहेगी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा। जानू जी तशरीफ आवरी हो गई, खाना खाया, टन हो गया, टून हो गया, तो हुण पे कहती हो कि चलो ज़रा चलीए उधर, की कहीदा किधर कह रहे हैं शेरू? वुडबाइन। वुडबाइन ये कह रहे हैं कि चलो। तो वुडबाइन क्या है जी, ज़रा बताएं आपका फेवरेट। एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट है, और ये वीडियो ज़रा बन जाएगी थोड़ी सी। सारा कनाडा ही बंद हुआ पड़ा है आज तो सारा, हाँ वाकई वाकई, आज वो तो खुला है ना, वुडबाइन खुला है, वुडबाइन तो खुला है ना, वुडबाइन तो नहीं बंद। वुडबाइन खुला है। अच्छा अच्छा, वुडबाइन। मैंने कहा आप अपने के बालों को यूं करती हैं, मैं भी यूं करता हूँ। वो मेरे बाल ही बस ऐसे हुए हुए हैं ना, चिपके चिपके से, चिपकू हुए हुए हैं। तो चले उठे, फिर निकले, उठे। फिजा किधर है? फिजा आ रही है। फिजा अच्छा जी, तो ड्राइवर, देखें ये ड्राइवर बन गए हैं, तो हम क्या हैं अगर ये ड्राइवर है तो? सवारी, ਅਸੀਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਹੋ। ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, बादशाह, बादशाह। यानी शाह के बाद वाला, यही हुआ। बड़ी बातें आप शोशे जोड़ते हैं, आप बहुत बड़े शोशे हैं, मुझे ये पता है आपका। शोशा खान कहते हैं इसे। शोशा खान, वो तोशा खान है, ये शोशा खान है। ये है शोशा खान, ये नज़र नहीं आ रहे हम दोनों। खाना है, ये शोशा खाना है। अल्लाह तोशा खाना दे झूठियां चीज़ां तो बचावे ये परवरदिगार। भी आप देख रहे थे, ये चौधरी जो है चौधरी इफ्तिखार, इफ्तिखार, जो चीफ जस्टिस, एक्स चीफ जस्टिस एक्स चीफ पाकिस्तान, जस्टिस, बड़ा अच्छा इंटरव्यू कर वो रहा है वो, इंटरव्यू बता रहा अरशाद है भट्टी। हाँ, कि वो पूछा कि जी आपने मुशर्रफ की बड़ी हेल्प की, और ये वो बता रहे कि मुझे उसने बुलाया और कमरे में बिठाया, और उसने आके कहा कि रिजाइन दे दो ये आपके खिलाफ बातें हो रही हैं, और रिजाइन करो, आप रिजाइन कर दें, वरना हम आपके ऊपर वो केस कर देंगे, रेफरेंस दायर कर देंगे। रेफरेंस है। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ उसका फिर उन्होंने कर दिया, उसको जो है उसको खुद कर दिया, खुद ही उसको फर्क कर दिया, लेकिन वो स्टैंड ले लिया ना, फिर उसने स्टैंड ले लिया, और सारे जो लॉयर थे पूरे पाकिस्तान के, उन्होंने तहरीक चला दी। देखो ना, ये अवाम को देखना चाहिए कि जहाँ इनके हकूक़ पे डाका पड़ता है, ख्वाह वो अपने ही हों, उनके लिए स्टैंड लेना पड़ता है, और ये डाके फिर रुक जाते हैं, हक पे डाका पड़ना। लेकिन ये वहाँ पता नहीं क्यों नहीं वो कह सीखती। रहे हैं ना, इफ्तिखार कह रहा था कि उसने मुझे ज़बरदस्ती करवाया, फिर सारे लॉयर खड़े हो गए कि हमारे इंस्टीट्यूशन की इज्जत नहीं रहेगी। हाँ बिल्कुल, ये मार्शल लॉ वाले और ये फौजी और ये इस तरह तो नहीं ना होता, वो हमारे अंडर आते हैं, वो पाकिस्तानी अवाम के नौकर हैं, वो नौकर हैं, चौकीदार हैं, जैसे आप चौकीदार हैं। नहीं रखते तो भाई, वही कह रही हूँ ये ना, आपके चौकीदार हैं। क्या पाकिस्तानियों को भी तो देखना चाहिए कि भाई हमने क्या करना है। चौकीदार ख्वाह इनका अपने हैं, अपने अंदर फिर के हैं। उसने कहा कि जी आपको जो है नून लीग ने फंड किया इसके बारे में। उसने कहा कहीं ना कहीं से तो हमें मदद चाहिए होती है ना, एक हक सच के लिए अगर आप लड़ने चलते हैं तो मदद तो चाहिए। तो वो अगर आपका दुश्मन भी आपकी मदद कर रहा है फाइनेंशियल या किसी तरह, आपको लेनी तो पड़ेगी, क्योंकि मुल्क बचाना है आपको। तो अगर हमने इंडिया से मदद ली या हमने इजराइल से मदद ली, वो हमारे दुश्मन वो है, हम आज भी दुश्मन मानते हैं। ये तो अंदर लेकिन के ये अपने जो अंदर बंदे हैं। हमारे माँ बहन बेटियों के साथ जो होने जा रहा था,
उसको तो बचाना पड़ता था ना हमें, तो हमने उसको बचाया। नवाज शरीफ ने हमें पैसे दिए। कि हम इस पे तबसरा करने की बजाय अपने व्यूवर्स को ये कहते हैं कि आप अरशद भट्टी का ये जो उसने नया इंटरव्यू किया है चौधरी क्या नाम है, चौधरी इफ्तिखार चौधरी, जो एक्स प्राइम एक्स चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, उनका आप ज़रूर सुने, आपको हक़ाइक़ का पता चलेगा। सारी कौम को मैं ये कहती हूँ, अगर जो मेरा व्लॉग देख रहा है पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, तो ज़रूर देखें कि उससे कौमों की जो है ना तारीख बनती है, और कौमों के अंदर एक नया जज्बा उठता है। हक हकूक़ और फ़राइज़ का जो एक सिलसिला है जो दबाता है आपके हकूक़ को, या आप फ़राइज़ पूरे नहीं करते, तो उसके बारे में ये एक बड़ा अच्छा ज़बरदस्त इस वक्त इंटरव्यू चल रहा है, आप ज़रूर देखें काइंडली। अभी हम निकल रहे हैं और फिर असद साहब, फ़िज़ा और मैं फिर आपसे बात करते हैं। और रूल तो कर, लेकिन एवरी न्यू जनरेशन जो में आमद वो ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक में ये खुद रहा ज़्यादा पेश रहा प्लान है। चाइनीज़ जो असन 100-200 ईयर पेश रहा प्लान आले ही जो तमाम चाइना मार्केट करता है वो चित्तौड़ करता है माँ खुद बोलो मुँह वक्त चाइना रा चीप चीज़ा में अजू वक्त ही ना प्लान ही स्टार्ट करता है। और ये सिर्फ अभी जी मैं दूर के ढोल सोने वाला कब के ऐसा ना, वो हम ये तो हम वो ज़रा पकड़ाए फिज़ा मोइस, अंदर जो है वो टेबल पे पड़ी है बॉटल पानी की ना, वो ज़रा पकड़ना मेरा बेटा। OTPT कर लिया आप दोनों की गुफ्तगू में। चले फिजा जान, ये आपकी पानी की तैयारी है आपकी? मेरे पानी तो पड़ा हुआ है अंदर, रख लें वैसे सेकेंडरी। जी स्टार्ट करें। ये वाली तो मिल जाती ही नहीं पुत्र, ये वापस कर रहे थे, हाँ वापस कर रहा, ये तो मिल जाती। आइए सरस्वती जी। सरस्वती सरस्वती क्या मतलब? आज राधा राधा सरस्वती राधा बन गए। चलें ठीक है। चंपा चंपा कली। वो देखें सर, वो कौन सा जहाज है, उस पे कैसे कितनी लाइनें पड़ी हैं? ये है पता नहीं कौन से मुल्क का जहाज है। कोई आर्मी का तो नहीं है? नहीं है फिजा, इतनी लाइन्स हैं उसके ऊपर। ये ऐसे लगता है कोई जेल से कैदी भागा जहाज है। इसको कैद हुई थी जहाज को, तो वहां से भाग के आ गए। तो सरस्वती लक्ष्मी आप ये स्टार्ट करें। ये स्टार्ट कर दी है। चल आप धरती माँ पे कब पधारी हैं? इसका मतलब होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ। ये देखे ना, हमारे साथ ना मुकाबले किया करें हंसी मजाक हमने के। मुकाबले करते हैं आपसे, आप बात करें, हम तो हंस रहे हैं आपकी बात पे। आप रुझानू जी बड़ी दौड़े लगा दी हैं, क्या हुआ है? नहीं वो ग्रीन था ना, वो ऑरेंज हुआ फिर रेड हो रहा था, तो आपने छूटे। मैंने कहा इससे पहले कि वो रेड हो जाए मुझे निकलना है फौरन। ओह माय गॉड। जब रेस ट्रैक पे जा रहे होते हैं फिर शाबा की स्पीड ही होती है। स्पीडें नहीं, अभी बहुत ही हुई है एकदम से फिजा, तो मैंने कहा ये क्या है, इतनी स्पीड क्यों चल पड़ी शाहजानू की? रेस ट्रैक भी है वो किधर? वुडबाइन घोड़े जो भाग रही है मेरे इस वक्त, उधर ही तो लेके जा रहे हैं, भाग रहे हैं उधर। ये इसीलिए भाग रहे हैं फिजा। इनको है कि मैं जल्दी जल्दी उधर पहुंचू, ये हमारे पता नहीं कहाँ से आ रही हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये इधर से ये घोड़ा जो गाड़ी चला रहे हैं उसकी तरफ से। अच्छा तो आप भी कमाल ही हैं, ये घोड़ा जो गाड़ी चला रहा है। घोड़े गाड़ी नहीं चलाते जनाब, आप भी कमाल है। ये देखें जी, ये चल रहा है इधर से गुरुद्वारा। गुरुद्वारा है रेक्सडेल गुरुद्वारा है सिटी। नहीं लेके आएंगे। हाँ नहीं ये रेक्सडेल नहीं है, सॉरी, ये तो हाईवे 27 है। है। इस वक्त हाईवे 27 पे हम चल रहे हैं। हम्बर कॉलेज है, इतना बड़ा है, बल्कि समझो कि इसमें कोई यूनिवर्सिटी के कैंपस भी हैं। क्यों? नहीं ये यूनिवर्सिटी बन गई है अब तकरीबन ये यूनिवर्सिटी बन तकरीबन गई। नहीं, ये यूनिवर्सिटी हम्बर कॉलेज यूनिवर्सिटी है ये। अच्छा, ये जो बिल्डिंग देख रही है ना आप, वो वाली वो कॉलेज था, ये यूनिवर्सिटी आ गई है इधर। इधर ये सामने वो सामने। बहुत बड़ा ये अंबर यूनिवर्सिटी या अंबर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज है, बहुत बड़ा, बहुत ये बड़ा देखो, है सब नई ये building सारी। है। ये देखें
सब नई बिल्डिंगें बनी हैं। देखिए अंबर कॉलेज है ये सारे का सारा। यूनिवर्सिटी कॉलेज ख़त्म हो गया है। अच्छा जी, ये यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी है और बड़ा मशहूर है, ये बहुत मशहूर है। इसकी जो एक ब्रांच है वो उधर है लेक शोर के पास, बिल्कुल लेक के ऊपर है। अच्छा, वो खैर बहुत पुरानी है, वो कॉलेज है। ये हॉस्टल्स हैं लेफ्ट पे जो आप बिल्डिंग अच्छा देख रहे ये हैं। हॉस्टल है। अच्छा, स्टूडेंट आर रेजिडेंस, यस। पूरे जो है ना दुनिया से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, पूरी दुनिया से, खसूसन इंडिया सारा। ये देखें कवर्ड हट में, ये सामने क्या? ये अंडर कवर कोई इनका इवेंट होता है यहाँ पे। मेरा ख्याल है कोई गेम कूम की होती होगी कोई अंडर, क्योंकि बर्फानी एरिया जो है ये, इस वजह लेफ्ट से। पे सारा बॉटनी का है, बोटेनिकल सारा देखे वो बहुत ही बड़ा है भाई, हाथी मुंह का ही है। मैं आज देखा है इतना, मैं सामने फ्रंट पे देखा है हमेशा, आज मैंने देखा आगे गाड़ी में इतना इसको। पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब अपने यूनिवर्सिटी आता। यहाँ से स्टूडेंट्स जाते हैं नीचे, पार्टियाँ करते हैं और फंक्शंस होते हैं पूरा। ये उसमें समर्स में ना यहाँ पे इतना खूबसूरत होता है ये सारा ग्रीन एरिया। अब ये सामने बिल्डिंग आ गई, ये भी इनका कोई ब्लॉक है किसी सब्जेक्ट का। वो जो सामने देख रहे हैं वो रेजिडेंशियल है, वो इनका नहीं है। चलें आगे चल के दिखाते हैं फिर और कुछ। हम आ गए हैं वुडबाइन रेस ट्रैक। ये साइड पे ये देख रहे हैं ना, ये एक हॉल है, इधर जो है फंक्शंस वगैरह होते हैं, और कैसीनो इसके पीछे बहुत बड़ा कैसीनो है। और वो पीछे जो है उनका जो है एरिया जहाँ पे ये रूम शूम रेंट आउट करते हैं। तो अब मैं आपको आगे ले जाके दिखाता हूँ इसकी जो मेन एंट्रेंस है वो कहाँ पे है। नहीं जी, मेन एंट्रेंस वो देखें, घोड़े की तस्वीर, मेरा घोड़ा आ गया। ये सारे जो है ना इधर, ये कैसीनो रिजॉर्ट, और ये सारे जो है बस का वेट कर रहे हैं। मेरे पीछे बस है, ये देखें बस आ रही है, ये सब बस का वेट कर रहे हैं। अब मेरे ख्याल में हम उधर जाके, मैं तो खैर ये दिखाने के लिए इधर लाया हूँ। ये देखिए कैसीनो, इधर हमने अभी अंदर जाना है और देखने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए अपने व्यूअर्स को कि ऐसे यहाँ पे गाड़ी आती है, पार्क होती है, ये कैसीनो में उतर जाते हैं लोग। और जिन्होंने आके अंदर बाकायदा टाइम गुजारना है वो पार्किंग में जाते हैं। अब मैं पार्किंग में ले जा रहा हूँ, तो फिर दिखाते हैं वहाँ से आते हुए। ले जी, पार्किंग हो गई। आपके पास जो कैश पड़ा है वो निकाल लें, कैसीनो में लग जाएंगे आपके सारे पैसे आज। हम जवारिये नहीं है, सॉरी। क्या हैं आप, तमाशाई हैं तमाशाई, यस, या तमाशबीन है? तमाशबीन। अच्छा, बीन और तमाशाई दोनों एक ही चीज़ है। बीन का मतलब देखना, देखना, पता है? बिनाई, हाँ बिनाई से, और तमाशाई का मतलब तमाशा देखने वाला। वाला। तो देखा ना, मेरी गहरी बातों को जो लोग नहीं समझते। चलो जी, एंटर करें। ये अब ऊपर चलना है कैसीनो की तरफ। पहले कैसीनो आएगा आई थिंक। रेस हो रही है। कैसीनो आ गया। नहीं, अभी तो हम आए हैं रेस ट्रैक। इधर देखते हैं कि रेस हो रही है तो थोड़ा सा मैं उस पर इन्वेस्टमेंट करूँगा। ये सारी बार इनकी पिज़्ज़ा वो सामने रेस होनी है, मैं दिखाता हूँ भी। अच्छा, ये जो है ना हाथ हो गया कि हमारे इधर वुडबाइन में नहीं हो रही रेस, वो 26 अप्रैल से शुरू होगी।
अब ये दूसरे मुल्कों में, शहरों में हो रही है, उसको मैं देखता हूँ, उस पर लगाता हूँ। ये सारे दूसरे मुल्कों में, अमेरिका में है और मैक्सिको, इस तरह दूसरे मुल्कों में अब इस पे लगाते हैं। देख के व्यूअर्स आपको दिखा रहा हूँ, करीब ले जाओ। ये मैंने इस सेंटा अनीता पार्क पे उधर रेस हो रही है, उस पे लगा दी है। आपको शुरू से दिखा रहा हूँ। नंबर 1 और नंबर 2 मैंने इन पे 4-4 आने की रेस कर दी है, जुआ लगा दी है। 1 हॉर्स नंबर 1 एंड हॉर्स नंबर 2। लेट्स सी क्या होता है। आप देख रहे हैं ना कि लाल कलर का जो है ये नंबर 1 और नंबर 2 बिल्कुल लास्ट पे है इस वक्त। ये ब्लू में नंबर 10 आप देख रहे हैं, ये लीड कर रहा है। तो नंबर 2 मेरा पीछे रह गया है, वो मुश्किल है जीतेगा। नंबर 1 में थोड़ी सी ताकत है। ये पीछे आप आवाज़ सुन रहे होंगे, ये इसी रेस के ऊपर इन्होंने भी जुए लगाए हुए हैं। ये देखिए नंबर 1 आगे आ रहा है, ताकत इसमें है, बना सकता है। Come on, man. ओए होए, थक गया, पीछे रह गया। चल 1 चल, वो आगे आ गया। ये लिखे जी, ये नंबर 1 मेरा, ये नंबर 1 आज जीत गया। नंबर 1 मेरा, कहा था ना आपको। आपने जो ज़हनी तौर पे सोचा था। नहीं, छोड़ दें इस बात को। अब विक्ट्री का दिखाऊंगा इनको कि ये नंबर 1 जीत गया। ये देखना जी, नंबर 1 मेरा इस पे लगाया है और वो जीत गया। ये देखिए, ये फिनिश दिखा रहे हैं। ये स्लो मोशन में भी आपने देख लिया, नंबर 1 जीत गया। अगर मैंने लगाया होता ना तो मुझे $7 मिलते। वो देखिए स्लो मोशन, ये पहले वो आया मेरा घोड़ा पहले, तो नहीं लगाया था, ऐसे ही मजाक कर रहा था, तो जीत गया हूँ मैं। बाय द वे, सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि मुझे नॉलेज है, घोड़ों की नॉलेज है। चलें जी, उधर से जाए ना गाड़ी, उधर खड़ी है। ले जी, वापसी का जीना पकड़ लिया। ये वापसी हो रही है। ये इधर से ऊपर गए थे, इधर से नीचे आ रही हैं। जुआ किसी का ना हुआ, ये नीचे जा रहे हैं, बाहर निकलेंगे। जा रहे हैं आप लोग मुझे छोड़ के? ओके, मैंने कहा शॉट दिखा दूँ। ये वो कैसीनो है, ये लोग नहीं जा रहे। इनको जो है ना अपनी, इतना खूबसूरत ये माहौल है और ये लोग जो है इस चक्कर में कि हमें जो है ना डोनट ख़रीद दो, हमें जो है ना कॉफ़ी पिला दो, ये नज़ारा नहीं लेना चाहते। हम कैसीनो जाना चाहते थे, अब नहीं जाएंगे। चलें, क्या कर सकते हैं, दूसरी शादी तो नहीं कर सकते। ये देखें जी, हमें सैर सपाटे करते हुए, आपके लिए व्लॉग बनाते हुए शाम हो गई। और अब ये देखें, अब ये सूरज जो हमारे प्यारे प्यारे आफताब साहब है ना, ये भी डूब रहे हैं। ये कह रहे हैं बाय बाय, अब मैं जा रहा हूँ, सारा दिन का थक गया हूँ। आसमान को, दुनिया पूरी को रोशन किया हुआ था, अब मुझे इजाज़त दो, मैं तो डूबने लगा हूँ और महताब अब ऊपर आएगा। एक गाना याद आ गया। हाँ जी, आलमगीर एक सिंगर था, है, अभी भी है। अभी भी है। हाँ। चलो अल्लाह जिंदगी दे उसे। उसका गाना था, ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं। तेरा नाम नहीं लूंगा, बस तुझको चांद कहूंगा। चांद कहूंगा। ये चांद नहीं है, ये सूरज डूब गया, थोड़ी सी छुआएं उसकी हैं, जाते जाते भी वो अपना रंग दिखा रहा है, बड़ा नटखट है। तो इसके साथ ही व्यूवर्स, हमें भी इजाज़त दें, हम भी सारा दिन से इसी जुस्तजू में हैं कि ये मैं दिखा रही। तो ये देखें, गाड़ियों की पूरा अज़दहा है, जहाज़ है गाड़ियों का जो जा रहा है रोड्स पे। तो बहरहाल हम भी अपने घर की तरफ, शाम ढली घर आओ सजना, ये तो वो वाला साहब है। और परिंदे चरिंदे इंसान सब घरों को जाते हैं शाम को, हम भी चल पड़े हैं
आपसे इजाजत लेते हैं क्या? जहाज भी घर जा रहा वो है घर जा रहा है, देखें जहाज साहब भी, और ये उधर भी से घर भी को एक जा रहे हैं जहाज घर जा और उधर से सूरज सब डूब गए हैं। वो एक गाना था ना, आज भी सूरज डूब गया है, आज भी तुम नहीं आए। ये देखें जी, ये गाना भी हम आपको सुना देते हैं, इसके साथ ही इजाज़त लेते हैं, असद साहब की तरफ से इजाज़त हैं। और फिजा जान आप क्या कहती हैं, बताएं इनको जो आप मैसेज Bye-bye. देती हैं, मैसेज दें अपना। इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पे फॉलो करें और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब और शेयर करें, ज़्यादा शेयर से करें, ज़्यादा। कमेंट्स करें। और ये ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होती है, अल्लाह ने चाहा। मैं भी ऐनक ज़रा उतार दूँ, बड़ी ऐनकें चढ़ा ली भी। तो आपको यही कहूँगी कि जो हम आपसे व्लॉग बनाते हुए क्वेश्चन कर देते हैं, उसका जवाब ज़रूर दिया करें। और इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। ये ले जी, सूरज डूब गया। बाय बाय।